حوصلہ کرو حوصلہ کرو، آ جاؤ آ میں جاؤ۔ یہ سوچ رہی ہوں کہ کل بھائی نے بات کر کے کہا تھا کہ میں افتتاح پہ بھی آؤں گا۔ انسان سوچتا ہے بلڈنگیں بنا لوں، گھر بنا لوں اپنے پکے، آرام کی زندگی گزاروں، لیکن آنے والا جو پل ہے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک پل میں کچھ ہے، دوسرے پل میں کچھ ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان کب جو ہے نا اس کا امانتی جو سانس ہے وہ نکل جائے۔ ہم مشغول ہیں، پانی ہے ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو جان ہے، وہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہم مشغول ہیں اپنے گھر بنانے میں، پکی اینٹوں کے گھر بنا رہے ہیں ہم، کہ ہم نے ایسا لگتا ہے کہ سر تا قیامت یہاں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جگہ پہ کل میں موجود کھڑا تھا، اس جگہ پہ یہ گنبد جو ہے، یہ اس وقت ہم رکشے سے اتار رہے تھے یہاں پر، تو سمجھ لیں کہ جب سسٹر کی کال آئی ہے تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہل گئی ہے، اور ایک دم کے لیے بالکل ہی ایسے ساکت ہو گیا ہوں۔ الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں کیا بیان کروں، کیونکہ کچھ دن پہلے میری بھائی سے بات ہوئی ہے، اچھی خاصی گپ شپ ہوئی ہے ان سے، کیونکہ ہماری جو بہن ہیں اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا دل دیا ہے، اتنا بڑا جگر دیا اللہ ہے پاک کہ کی نیک بندی ہے وہ۔ اتنا بڑا کام انہوں نے اپنے والدین کے لیے کیا ہے، تو میں تو اس سے بڑھ کے کچھ نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی اولاد تو سمجھ لیں کہ اور ماں باپ کو ایک گلاس پانی دے کے راضی نہیں، اور کچھ ایسی اولاد بھی ہوتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ان کی خواہشیں آخرت جو ہے نا کچھ اس طریقے سے سنوارتی ہے۔ صدقہ جاریہ بنتی اللہ ہے۔ پاک میری بہن ہیں جو ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ان کے نام کی اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے اور شاد رکھے۔ بھائی نے مجھے کہا تھا کہ احمد بھائی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری۔ میں نے کہا تھا جی بھائی جان حکم کریں، آپ ریکویسٹ نہیں کریں، آپ حکم کریں۔ تو اچھی خاصی گپ شپ ہوئی، لیکن کیا پتہ تھا کہ انسان صرف جو ہے نا ایک ہوا ہے، ہوا ایک پل میں کچھ ہے، دوسرے پل میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری دلی خواہش ہے احمد بھائی آپ جو ہے نا میری بہن سے بھی بات کر لینا، میں بھی ان سے بات کر لوں گا، کہ انہوں نے تو میری امی ابو کے نام سے جو ہے نا مسجد بنوائی ہے، اللہ پاک ان کو اجر دے۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ مسجد کے اندر جتنی بھی صفیں بچھائی جائیں وہ میں خود جو ہے نا بھیجوں گا، تو وہ صفیں آپ بچھا دیجیے گا، بھلے میں اسلام آباد سے لے کے بھیجوں، کیونکہ بھائی اسلام آباد میں رہتے تھے۔ اور دیکھیں کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف 2 بہن بھائی ہیں، 2، ہاں جی 2 بہن اور ایک بہن پردیس میں رہتی ہیں، اللہ پاک میری بہن کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ایک بھائی اپنے دیس میں تھا، ایک بھائی جو تھا یہاں اسلام آباد میں تھا، اور اللہ پاک کی رضا سے وہ پرسوں والے دن جس دن ہم گئے تھے اس دن جو ہے نا بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، نہ کبھی اس طرف سوچا تھا۔ کل شام کا وقت تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا گنبد وغیرہ ہم اتار رہے تھے، تو سسٹر کی میرے پاس کال آئی ہے، اور میں ان کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ بھائی کی چوٹ ہے، انہوں نے مجھ سے بات کی، سلام دعا کی، اور مجھے کہا کہ احمد بھائی رابعہ کا سنائیں کیسی ہے، بچوں کا سنائیں، کافی دن ہو گئے آپ سے بات یعنی کہ انہوں نے تسلی سے بات کی ہے، محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کے دل میں اتنا بڑا زخم لگ چکا۔ پھر میں نے جب پہچانا کہ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے ساکت ہو جاتی تھی، پھر بعد میں نے کہا بہن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے خیریت کیا ہوا؟ مجھے کہتی ہیں احمد بھائی آپ سے ایک کام ہے۔ میں نے کہا بہن حکم کریں آپ، یہ کہ اس ناچیز کے پاس آپ کا کون سا ایسا کام ہے، آپ حکم کریں، آپ کا بھائی حاضر ہے۔ تو بہن کے منہ سے بہت ہی سمجھ لیں کہ جھجکتے ہوئے الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ احمد بھائی جو ہے نا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یقین مانیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بہت حوصلہ دینے کی کوشش کی ہے، اور سسٹر کو اتنا سمجھ لیں کہ میں نے ان کو حوصلہ ہی دے سکتا ہے انسان، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کو کبھی بھی فراموش اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ چلے گئے، اب پتہ نہیں ہمارا کیا ہو، ہم کل نہ ہوں پرسوں نہ ہوں، کچھ پتہ بھی نہیں۔ سسٹر کے والدین چلے گئے، اور یعنی کہ گھر میں یہ صرف 2 بہن بھائی تھے، سسٹر اب اکیلی رہ گئی ہیں، اللہ کا آسرا ہے، بچوں کا آسرا ہے،
शोर का आसरा है। भाई था, बहन थी, एक दूसरे को दुख सुनाकर रो लेते थे, दुख बांट लेते थे। यकीन करो कल मुझे इतना हौसला दुख करो, हुआ हौसला करो, हौसला कि करो। जिस टाइम कल सिस्टर बता रही थी ना कि मुझे वो इतनी यानी कि तड़प हुई कि मुझे पछतावा ये है कि मैं अपने भाई का मुंह नहीं देख पाई। तस्वीरों में तो देख लिया उन्होंने, लेकिन हकीकत में नहीं देख पाई। तो मेरे आगे वो सीन घूमा मेरे, जब मैं भी कराची में इसी तरह से सिस्टर की तरह तड़प रही थी, जब मेरे भाई को यहाँ पर दफनाया गया साहिबल की साइड। हाय हाय, अल्लाह पाक सबकी मगफिरत करे और अल्लाह उनको पाक सब्र किसी दे। से किसी का सारा वालिदैन बहन भाई ना जुदा करे। राबिया देखो, मौत एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें कबूल करना है। मैंने सिस्टर को इतना तसल्ली दिलवाई कि सिस्टर देखे हम हैं, जब तक मेरी और अहमद की ज़िंदगी है मैं कभी भी आपको नहीं भूलूंगी। दुख में वीडियो भी, के थ्रू सुख भी में मेरा एक मैसेज है अपनी बहन के लिए कि बहन, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं आपका सगा भाई हूँ, कभी मुझको खुद से जुदा ना समझना। और आप मेरे मरने के बाद तो मुमकिन हो, मेरे जीने जी मुमकिन नहीं होएगा, आपसे कभी भी राब्ता हमारा ख़त्म नहीं होएगा। जितनी भी हमारी प्यारी बहनें हैं, यास्मीन सिस्टर हैं और हमारी और भी काफ़ी सारी बहनें हैं जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रह के इतना हमें प्यार देती हैं और इतना हमें यकीन माने कि हमारे हर दुख में, हर सुख में ऐसे लगता है कि जैसे हम बिल्कुल अपने बहन भाइयों से बात करते हैं। आप भी अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो यकीन माने, जब हम आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ते हैं, आप हमें मशवरा दे रहे होते हैं, आप हमें समझा रहे होते हैं, आप हमें डांट भी रहे होते हैं, यकीन माने कि ऐसे लगता है कि जैसे अगर हम एक दिन भी आपसे बात ना करें, आपसे गपशप ना हो हमारी, तो हमारा दिल बिल्कुल ही उदास सा रह जाता है। अब इस YouTube पे आने से समझ लें कि हमारे सारे रिश्तेदार सब ने हमें बुरा कहा, भला कहा, हमसे कट गए सब, कोई भी हमें नहीं हमने फिर भी यही मिला था। सोचा कि चलो कोई मसला नहीं है, हमारे इधर से कट हुए, थोड़े कट हुए, लेकिन हमें इतने ज़्यादा मिल गए। हमारे हज़ारों की तादाद में कट हुए, लाखों की तादाद में हमें बहन भाई माँ बाप सब कुछ हमें मिल गया। हमने दिल को तसल्ली दी, सब्र दिया और आप बहन भाइयों के साथ चले। और यहाँ पर मैं कहूँगी आप बहन भाइयों से कि मेरे जितने बहन भाई मुझे पाकिस्तान में रहने वाला और पाकिस्तान से बाहर जितने भी देख रहे हैं, मेरी सिस्टर के लिए ज़रूर दुआ करनी है, उनके भाई के लिए ज़रूर आपने दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमारी बहन को जो है अल्लाह पाक हौसला दे, सब्र दे, क्योंकि ये एक ऐसी चोट है जो जिसके जख्म जो है ना बहुत मुश्किल से भरते हैं। जो मलिया सिस्टर है इनका तो कोई भी नहीं है, इनके आगे कोई बहन भाई नहीं है ना, हम हैं। हमें आगे कोई बहन भाई नहीं है जो वहां पर उन्हें गले लगाकर तसल्ली दे। काश कि मैं उस दिन भाई की मैयत पर पहुंच जाती। परदेश से इसीलिए डर नहीं लगता, परदेश से डर नहीं लगता, परदेश की मौत से डर लगता है। अब वो बहन हमारी वहाँ USA में रहती हैं, भाई इस्लामाबाद में थे, सिर्फ मोबाइल पे ही तस्वीर देखी है, बस कितने अरमान होंगे उस बहन के और क्या उस बहन के दिल पे गुजरी होगी। प्यारी बहन ने इस महीने की 11 तारीख को, इस साल के 11वें महीने को। अच्छा, आपको सिस्टर क्या कह रही थी कि मैं भाई से जो आना था मुझे, तो भाई इंतज़ार करते। कह रही थी, मैंने कहा था सिस्टर मैंने तो इफ्तिताह रखा हुआ आपके आने पर कि आप 11वें महीने में आएंगे, बड़ा इफ्तिताह करेंगे। कहने लगी नहीं राबिया अब नहीं आऊँगी। मैंने उनसे पूछा वजह, कहने लगी कि मेरा भाई इंतज़ार करके चला गया इस दुनिया से, मैं अब किसके लिए आऊँगी। मैंने उनसे कहा कि सिस्टर एक दफ़ा आप प्लीज़ पाकिस्तान आ जाएं, भाई की कब्र पे चली जाएं, उनकी कब्र पे छां कर दें, उनकी रूह को सुकून मिल जाएगा। कि जीते जी न्याय मरने के बाद तो वही। सिस्टर अगर आप वीडियो हमारी देख रही हैं इस वक्त, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपकी अमानत है, मस्जिद जो आपने तामीर करवाई है, हमारी विलेज को एक नाम दिया है और हमारे साथ बहुत आपने कोऑपरेट किया है, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, तो इस दुख में हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते और ना ही आपको कहेंगे कि कभी आप ख़ुद को अकेला समझना। आपका भाई भी ज़िंदा है, आपकी बहन भी है, हमारा दिल इतना बड़ा हो जाएगा जब आप हमारे पास आएंगी। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि आप ख़ुद आएँ, इस खूबसूरत सी मस्जिद का अपने जो आपके अम्मी और अब्बू के नाम से मंसूब है, ख़ुद ही आके इसका इफ्तिताह करें यहाँ पर और
हमें बहुत फ़ख्र महसूस होगा, बहुत खुशी होगी दिल को, और हमारे जितने भी बहन भाई देख रहे हैं वो सब भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और सबसे भी मैं हाथ और जोड़ के सिस्टर भी ये भी कह रिक्वेस्ट रही करता थी हूँ कि कि प्लीज़ जो है ना, जब भी आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो प्लीज़ दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे भाई के लिए दुआ स्पेशली जरूर करना, स्पेशली दुआ जरूर करना। स्पेशली सऊदी अरब वाले बहन भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अगर मक्के में मौजूद हैं, मदीने पाक में मौजूद हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उनकी दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करनी है आपने। अल्लाह पाक सब बहनों के भाइयों को हमेशा सलामत रखे, किसी बहन को किसी भाई का दुख ना दे, किसी औलाद को माँ बाप का दुख ना दे, और किसी माँ बाप को किसी की औलाद का दुख ना दे। सबके वालिदैन के साए उनके हमेशा अपने बच्चों पे कायम रहें। सब क्योंकि यहाँ भाइयों पर मेरी सिस्टर का घर बिल्कुल खाली हो चुका है। सब भाइयों के हाथ हमेशा अपनी बहनों के सर पे रहें, और सब जितनी भी हमारी बहनें देख रही हैं, उनके अगर शादीशुदा हैं तो उनके जो खामद हैं उनका साया हमेशा उन पे और उनके बच्चों पे कायम रहे। ये हमारी दिली दुआएं सबके लिए निकलती हैं। रोज़ाना हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी तमाम बहनें जो इतने हमें प्यार देती हैं, इतना हमें खलूस देती हैं, इतना हमें ख़ुद को कभी अकेला नहीं छोड़ती हमें। मैं तमाम अपनी बहनों का जो इस वक्त देख रही हैं, तमाम अपने भाइयों का जो इस वक्त देख रहे हैं, उन सब का मैं दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में सलामत रखे, हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। छोटी सी वीडियो के साथ और आपकी यहाँ खिदमत में पर हाज़िर हुए थे। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि सिस्टर ने कहा कि अब तक जितना लग चुका है इसमें वो मेरी अम्मी के नाम से था, अब आगे जो लगेगा वो मेरे भाई के नाम से लगेगा। उनकी ख्वाहिश थी मस्जिद के अंदर सफ़े बिछाने की, जो कि मेरी रात को फैन बहन थे, से मस्जिद के पंखे थे। बात हुई है, तो मेरी बहन ने कहा है कि सफ़े वगैरह जो हैं वो भाई के नाम से ही मंसूब करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उस बहन को हौसला दे। तो मेरी प्यारी सी बहन, अल्लाह का जो घर है वो तकरीबन 99% कंप्लीट है, अल्हम्दुलिल्लाह। और समझ लें कि 1% रहता है। मीनार अभी लग चुके हैं, मैं बाहर चल के आपको मीनार भी दिखा देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नक्शा हमारी बहनों ने बताया था वही नक्शा मस्जिद का तैयार करवाया है। और आज इसी अपील के साथ हाज़िर हुए थे आपकी खिदमत में। आज कोई व्लॉग नहीं है हमारा, हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं। तो और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि पत्तों की वाली में जो वाक़या हुआ पापड़ वाले भाई के अल्लाह साथ, अकबर, अल्लाह अस्तगफुर। अकबर, इसमें इंसानियत बिल्कुल ही मर गई। लानत है ऐसे शादी वालों पर, ऐसे रोटी खाने वालों पर कि मैया साथ में पड़ी हुई उस बेचारे की, जिसके पीछे कोई रोने वाला नहीं था उस टाइम, और आप शादियों के खाने आ रहे हैं, आप डूब के शादी मर बजा जाने का रहे हैं। मकाम है। वही बात है ना, इंसानियत ख़त्म हो गई है इंसानियत राबिया। बिल्कुल खत्म हो और गई। हमारे मुआशरे के लोग पता है क्या करते हैं, अगर कोई कहीं मर रहा है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कुछ, वो और कुछ नहीं करेंगे, यकीन करो, हौसला किसी दिन दिलासा ये नहीं देंगे। वाक़या हुआ, मेरे पास व्हाट्सएप पे वीडियो आई, मेरा दिल दहल कर रह गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल कर रह गई। इस वीडियो को देखकर मैं तड़प के रह हमारे मुआशरे के लोग क्या करते हैं, किसी को अगर तकलीफ में देखते हैं तो वो सबसे पहले अपनी जेब से मोबाइल उस निकालेंगे और बेचारे वीडियो ने बनाएंगे। मुंह पे कपड़ा भी नहीं डाला, मक्खी भी ना करी है। क्या वो चोर था जो शक्ल से बेचारा मासूम था, पापड़ बेचकर अपनी बहनों की शादी की? खुद उसने अकेला है, खुद अकेला अकेला, रहेगा। खुद अकेला बहनों के आश्रय में खुद अकेला इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। अल्लाह पाक बेहिसाब अल्लाह मग़फ़िरत उसके फरमाए, दुश्मनों को तबाह और बर्बाद कर दे जिन्होंने इस तरह जुल्म किया उस और अल्लाह पाक उस भाई की भी मग़फ़िरत करे। मग़फ़िरत सब ने करे। आपके लिए, आपने भी उसके लिए दुआ करनी है। जी हौसला नहीं बन रहा आगे वीडियो कंटिन्यू करने का, इजाज़त चाहेंगे आपसे, कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्पेशली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के दुआ हाथ कीजिएगा। जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे इन दोनों भाइयों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक इन दोनों को करवट करवट जन्नत नसीब करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। हौसला करो, हौसला करो, आ जाओ, आ मैं जाओ। ये सोच रही हूँ कि कल भाई ने बात करके कहा था कि मैं इफ्तिताह पे भी आऊँगा और चटाइए भी मैं अपने आप से हाथ से यहाँ पर बिछाऊँ। अल्लाह पाक बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक हमारी बहन को भी सब्र दे। आ जाओ, मस्जिद का बाहर से रिव्यू कराते हैं, जो अपनी हमारी बहनें हैं उनको दिखाते हैं अल्लाह पाक का खूबसूरत सा घर बाहर से, जो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। आ जाएं, हौसला करें, हौसला करें, आ जाएं।
माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। और ये देखते जाएं कि जी यही डिज़ाइन आप सब बहनों ने और भाइयों ने मशवरा दिया था, तो ये आप सबके सामने जो काम है वो हो रहा है। रोज़ा रसूल वाला। हाँ, ये भी कलर होंगे तकरीबन। भाई जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कल जुम्मा है, जुम्मे वाले दिन वो छुट्टी करेंगे और परसों वाले दिन आके, ताकि ये सूख भी जाएंगे और परसों वाले दिन आके जो है ना फिर इनको कलर वगैरह होगा। और ये ऊपर स्टील के जो हैं ये इनके ऊपर नहीं लगे, इनके ऊपर भी लगेंगे। और इंशाल्लाह कल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लाउड स्पीकर वगैरह जो है ना वो मैं अरेंज करूँ। और इस मीनार पे सोचा है कि लाउड स्पीकर लगाएंगे, 2 शायद 4 ले आऊँ, 2 का रुख ऐसे रखेंगे और 2 का ऐसे रखेंगे, 4 हो जाएंगे, ताकि इधर भी दूर तक आवाज़ जाएगी, इधर भी और इधर भी। और इंशाल्लाह मेरी बहन के जो अम्मी अब्बू का नाम है, जिस नाम से ये मस्जिद मंसूब है, तो ये सेंटर में जो जगह है इसकी प्लेट इंशाल्लाह मैं अच्छा सा डिज़ाइन देख के तो वो भेज देता हूँ बनवाने के लिए, वो इंशाल्लाह बन के आ जाएगी। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह माह रमज़ान के फिर फ़ौरन बाद इसका मार्बल का काम शुरू हो जाएगा। और मार्बल के काम के साथ फिर इंशाल्लाह इस जगह पे जो है ना एक बोर्ड हम नस्ब करवाएंगे, यहाँ पर लोहे का एक बोर्ड नस्ब करवाएंगे, जिसके ऊपर जितने बंदों ने भी कोशिश की है मस्जिद को बनाने की उन सब के नाम तहरीर करेंगे। और ऐसे वाले जो वो सेंटर में लग रहे हैं खूबसूरत वाले पत्ते, वो इस तरफ भी अभी लगाएंगे ये लोग। तो मीनार वाले जो हैं ये आज अपना काम फाइनल करके जा रहे हैं, मतलब मीनार वगैरह लगाने का। बाकी जो कलरिंग का काम है वो कह रहे हैं कि हम सैटरडे को आगे करेंगे, हफ्ते वाले दिन। बिजली का काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। आज बिजली वाले ने आना था लेकिन नहीं आया, उससे मेरी बात हुई। अच्छा राबिया, कितने 6 पंखे कहे थे ना हमने कि 8? 6 पंखे हैं ना? हाँ। है ना? 2 अंदर लगेंगे, 2 अंदर हैं और एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है, एक उधर है। हाँ जी। 4 और 2 6 2 सेंटर के हैं। और 2 सेंटर के हैं। हाँ जी। 6 पंखे। नहीं, सेंटर का एक से इसका है, एक मौलवी के कमरे का है। 2 छत वाले हैं ना? हाँ, 8 पंखे पूरे हैं ना। 2 छत वाले हैं और 4 24 वाले हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी जी लाइटिंग वाइटिंग भी इंशाल्लाह बाहर के पॉइंट अभी छोड़े जाएंगे, और बाहर भी अंदर कंप्लीट हो चुकी है। हमने भी यही करे कि एक पिलर यूं उठवा के, एक यूं उठवा के। वो तो लोहे का बनेगा ना ऐसे? हाँ, बीच में लोहे का बनेगा, इधर पिलर लगेंगे। वो भी आप लोहे का पाइप भी लगा सकते हो ज़मीन में, नहीं, वो भी लग जाता है। वो नहीं, हमें पिलर सही रहेंगे हमारे। वो वेल्डिंग वाले को भी दिखा देंगे, जिस हिसाब से किसी मस्जिद का नक्शा भी देख लेंगे, वरना पिलर बनवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। उससे ये कि हमारे पंखे मजबूत और वो पैप भी मजबूत हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़ करने के बाद आपको दोबारा से मस्जिद का रिव्यू करा दिया है जी। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।